वेलकम फ्रेंड्स, विश्वास लर्निंग विद ट्रस्ट चैनल से आपको स्वागत करता हूं। मैं विश्वजीत। सो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैथमेटिक्स टॉपिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एंड proportion. So we will discuss about what is ratio and what is proportion and its questions, how questions come. We will discuss about various types of questions. So friends, what is ratio? रेशियो मीन्स अनुपात। क्या अनुपात होता है? यू सी, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन जैसे रेशियो होता है। सपोज 2/3, यदि हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 2:3। तो उसका मतलब यह है कि हम हमारा ये न्यूमरेटर रह गया, ये डिनोमिनेटर आ गया। जब हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो पहले से दूसरे का रेशियो जब पूछेगा तो आपको सीक्वेंशियल लेना है। 2:3 दिया गया है कि 3:2, उसको देख कर लेना है। सो दिस इज आवर रेशियो एंड व्हाट इज प्रॉपर्शन। प्रॉपर्शन मीन्स इट्स दिस इज ए फ्रैक्शन एंड इट्स ए लाइक फ्रैक्शन और इट्स ए सिमिलर फ्रैक्शन। दैट मीन्स हियर इज 2/3, इफ आई विल मल्टीप्लाई हियर 2 and also here 2, then it will become 4/6. So now you see 2/3 is equal to 4/6, because if we will cancel with 2, it will become 2:3. So this will be written as in this form 2:3 proportion to 4:6. This is known as proportion. This is ratio when two ratios will be compared with 4 dots. This is known as proportion, and you will get two pairs of ratios with proportion sign. That means its ratio is equal to this ratio. And another, you see here, if there are here is 4 terms, 1 2 3 4. Suppose A is to B, C is to D. So if you will convert to it fraction, then A by B is equal to C by D. When we will cross multiply it, that is AD is equal to BC. उसका मतलब यह है कि you see these two terms are the extreme points, that means are the first and last. So these two is known as extremes and these two is known as means. So product of these extremes is equal to the product of means. This is important, that is the product of extremes is equal to product of means. Sometimes there is questions about this and we will discuss about questions come from this, that the product of extremes is known equal to product of means. So here this is first term, second term, third term, fourth term. कभी कभी पूछेगा कि what is the fourth proportion, what is the third proportion. क्वेश्चन ऐसे आएगा, सपोज 2 3 4, then what is the fourth proportion. So we have to apply. Suppose fourth proportion is x, then 2 into x, that means 2x is equal to 3 into 4, that is 12. That implies x is equal to 12/2 is equal to 6. So यहाँ पर 6 है, ऐसे ही क्वेश्चन से आएगा। सो फ्रेंड्स, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हमको इतना पता चल गया, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस आता है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आता है। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज A and B together have ₹1210. If 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amount does B have? Then you see here question, we will extract the data from the question very easily. You see total A और B के पास है 1210 rupees. If 4/15 of A's amount, that means 4/15 of A's amount, suppose A का अमाउंट A है, 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount. B का अमाउंट B है, तो उससे हमको रिलेशन पाना है। इसमें रिलेशन क्या है उसको यहाँ पर पुट करके हम आंसर पा जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो B का अमाउंट पूछा है, तो हम B का अमाउंट पूछा है, मतलब हम A को भी B से कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जब A को B से कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा B वेरिएबल B में ही आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, तो उसको सॉल्व करना इजी होगा, डायरेक्ट हम आंसर पा जाएंगे। सो यू सी हियर
if you will cancel here 5 1 ja 5 3 ja, then 2 1 ja 2 2 ja, that means 2/3 of a is equal to b. सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिवीजन है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ आ जाएगा 3/2 ऑफ b, ऐसे हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पे 3 चल जाएगा, 2 यहाँ पे चल जाएगा, a इज इक्वल टू 3/2 ऑफ b हो गया। और a और b का कितना है टोटल रुपीस 1210, दैट मीन्स a का है 3/2 ऑफ b प्लस b इज इक्वल टू 1210। नाउ यू सी LCM इज 2, 3 plus 2 into b is equal to 1210, that means 5/2 of b is equal to 1210, that means b is equal to 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई होगा, 1210 इंटू 2/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10. So when 242 will be multiplied with 2, it will give 484. So our correct answer is 484. So option number B is our correct answer here. So friends, the next question is, two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of the two numbers is how much? So you see, the two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. So जब कोई क्वेश्चन पर परसेंटेज आएगा तो हमको परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 में ही काउंट होता है और कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको 100 लेने से इजी होगा। तो लेट हमारा थर्ड नंबर क्या है 100, देन उससे ज़्यादा है कितना, रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50%। 20% ज़्यादा है मतलब 100 का 20% 20 हो जाएगा, 100 से 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। और दूसरा नंबर क्या हो गया 50% मोर देन, तो 100 का 50% 50, 100 से 50 ऐड हो गया तो 150 हो गया, 150। देन उसका रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो उसका करेक्ट आंसर 4:5। सो 4:5 इज द करेक्ट आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में आता है, प्रीवियस ईयर एसओ क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था। तो फ्रेंड्स वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी डी इन द proportion of 5:2:4:3. If C gets rupees 1000 more than D, what is B's share? So you see here, the question is lengthy but this is an easy question. जो रुपीज है ए बी सी डी चारों में हमको बांटना है, और द प्रॉपर्शन क्या होगा 5:2:4:3। उसका मतलब रेस्पेक्टिवली ए के पास यदि 5 रुपया हो गया, बी के पास 2, सी के पास 4 और डी के पास 3। इफ सी गेट्स रुपीज 1000 मोर देन डी, उसका मतलब जब कोई प्रॉपर्शन में आएगा या रेशियो में आएगा, तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, मैंने बताया था। तो लेट 5x लेंगे ए को, बी को 2x, सी को 4x और डी को 3x। तो किसका ज़्यादा है, सी गेट्स 1000 रुपीज़ मोर देन डी, दैट मीन्स सी का 4x है और डी का 3x है, और सी के पास डी से अपेक्षा 1000 रुपीज़ ज़्यादा है, दैट मीन्स सी का रुपीज़ है 4x, डी का है 3x, और 4x से 3x माइनस होगा तो 1000 रुपीज़ निकलेगा। तो वहाँ पे देखो 4x से 3x माइनस हुआ तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, दैट मीन्स x का वैल्यू है 1000। सो हम सबका वैल्यू पता चल जाएगा, इसका 5x, इसका 2x, इसका 4x और इसका 3x। सो b का शेयर पूछा गया है, b का है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। सो बी का शेयर है 2000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, seats for mathematics, physics, biology in a school are in the ratio 5:7:8। मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी में इतने रेशियो में था सीट्स। देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75%। इतना ही बढ़ोतरी हुआ 40%, 50%, 75%। सो
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स, इंक्रीज सीट्स का रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहले से हमारा 5, 7 और 8 रेशियो में था। यू सी हियर 5, 7, 8 रेशियो में सीट्स था। जब 40%, 50% और 75% का बढ़ोतरी हुई, उसका मतलब 100 सीट में क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे 140/100 इंटू 150/100, उसके बाद 175/100। उसका मतलब इन तीनों में बढ़ोतरी हुई 40%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 75%। तो अब हम इसको अब सिंप्लीफाई करना है और रेशियो लाना है, क्या रेशियो होगा। तो उनमें जो कॉमन जाएगा उसको हम उससे ही डिवाइड कर देंगे। सो यू सी हियर 100 यहाँ पे कट हो गया। उसके बाद यू सी 5 से डिवाइड हो पाएगा सब नंबर। सो 5 से डिवाइड हो गए, वहाँ पे 5, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 30, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35। सो यू सी हियर सब नंबर अभी किस में डिवाइड होगा, 5, फिर से 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, देन 5 से 5 7 इंटू 6 रेशियो, वहाँ पे 8 इंटू 5 से 5 इंटू 7। सो यू सी सब नंबर 7 में डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 7 और 7 कट गया, तो वहाँ पे रहा 6 और 8। फिर से 2 से सब नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, उसका मतलब 2:3:4। बहुत से आसान से क्वेश्चन है, इसको करने से लगभग 1 मिनट ही टाइम काफ़ी है। तो 2:3:4 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस को पहले समझना है और उसके बाद कितने बढ़ोतरी हुआ है, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। तो 40%, 50%, 75% का बढ़ोतरी हुआ है, तो उसका मतलब कितना हो गया है सीट्स। तो इतना बढ़ा है का मतलब 140/100 आया है, 150/100 आया है, 175/100 आया है। इसमें मल्टीप्लाई करना है और उसको सिंप्लीफाई करके उसका सिर्फ रेशियो बताना है, वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज in a mixture of 60 liters the ratio of milk and water is 2:1. If this ratio is to be 1:2, then the quantity of water is to be further added is what? This is an important question. जब भी कोई क्वेश्चंस लोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आता है। मिक्सर और एलिगेशन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वो मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चंस होता है। मिक्सर्स में कैसे आता है, सपोज उसका उनका मिला हुआ है इतना रेशियो में और कितना ऐड हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। शॉर्टकट ट्रिक से उसमें कोई देखोगे तो शॉर्टकट ट्रिक कभी याद होगा या नहीं होगा, इसमें बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका आंसर बहुत जल्द ही पा जाओगी। देखो 60 लीटर का मिक्सर है, मतलब हमारे पास जो पानी और दूध का मिश्रण है 60 लीटर का है, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 2:1। उसका मतलब वो 2 पार्ट होता है और ये 1 पार्ट होता है, कुल मिलाकर 3 पार्ट हो गया। हमारा टोटल कितना है 60 लीटर। 60 लीटर में यू सी 60 लीटर में हमारा 2 पार्ट और 1 पार्ट मिलकर है 3 पार्ट टोटल। 3 पार्ट यदि 60 हो गया, 1 पार्ट कितना होगा, तो 1 पार्ट हो जाएगा 20 का मतलब 20 × 2, मिल्क हो गया 40 लीटर और ये हो गया 20 लीटर, वो मिलाकर 60 लीटर हो गया। तो यू सी हियर हमारे पास अभी 40 लीटर का मिल्क है और उसमें 20 लीटर का पानी है, और उसमें क्वेश्चन है कि 1:2 रेशियो में कन्वर्ट होगा। यू सी हियर यू हैव टू सी यू हैव 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट रेशियो 1:2। उसका मतलब यह यदि 40 लीटर हो गया तो उसका 2 गुना पानी होगा, उसका मतलब 80 लीटर पानी होना चाहिए। लेकिन हमको 80 लीटर पानी करने के लिए यहाँ पे 20 पहले से मौजूद है, तो हमको और 60 लीटर डाल देना चाहिए कि उसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, 8 लीटर करना है और 60 लीटर हमको डाल देना है पानी, जो कि उसका रेशियो 1:2 बन जाएगा। तो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 60 लीटर्स ऑफ वाटर और चाहिए हमको रेशियो 1:2 बनाने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
salaries of Robbie and Smriti are in the ratio 2:3. If the salary of each is increased by rupees 4,000, the new ratio becomes 40:57. What is the Smriti's salary? So you see here, Robbie and Smriti's salary now 2:3 ratio. That means Robbie का salary 2x है और स्मृति का salary 3x है. ऐसे है इनका रेशियो जो. If the salary of each is increased by 4,000, so you see here, इसका 4,000 इंक्रीज हो गया और इसका भी 4,000 इंक्रीज हो गया. जब दोनों का 4,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया तो रेशियो बन गया 40:57. उसका मतलब 40/57 वहाँ बन गया. तो हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें, और x का वैल्यू जो आएगा उसमें 3x + 4,000 निकालना है, जो कि स्मृति सैलरी अब हो जाएगा. सो यू सी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 57 को इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 57 × 2x प्लस 57 × 4,000 इज इक्वल टू 40 × 3x प्लस 40 × 4,000 इम्प्लाइज 57 × 2x से इस साइड को, इस वेरिएबल को एक साइड लाएंगे, तो यू सी हियर व्हाट विल बिकम. सो फ्रेंड्स यू सी हियर, जब इसको 2x से मल्टीप्लाई किया तो 114x एंड 57 × 4,000 40 × 3 120x वो हो गया. तो वहाँ पे 120x बड़ा है तो उसको उसी साइड से ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 120x - 114x इज इक्वल टू, इस साइड को इसको ले आएंगे 57 - 40, क्योंकि वो जब इसी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -40, दोनों में 4,000 है तो 4,000 को कॉमन ले लिया हमने, तो वो 4,000 कॉमन में है. तो उसको जब घटा करेंगे तो क्या होगा, 6x इज इक्वल टू 57 से 40 जाएगा तो 17 × 4,000. सो यू सी हियर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 17 × 4,000/6. तब अब क्या करेंगे कि 6 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर हमारा निकलता है. तो फ्रेंड्स यू सी, हमको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 6x है, हमको 3x निकालना है क्योंकि स्मृति से सैलरी पाना है. तो यू सी हियर, हमको इसको आसान बना देंगे, यहाँ पे 3x का वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ पे 3x रह गया, उसका मतलब 2x था और 2 को हमको यहाँ पे डिवाइड करना है. तो उसको जब डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2 और ये 20,000 बन गया, और 17 × 2 34,000. तो 3x का वैल्यू हो गया 34,000. जब 3x का वैल्यू 34,000 है और उसके साथ 4,000 हमको ऐड करना है, क्योंकि स्मृति सैलरी पाने के लिए स्मृति का सैलरी न्यू सैलरी हो गया है 3x + 4,000, दैट मीन्स 34,000 + 4,000 इट विल बिकम 38,000 सैलरी. तो 38,000 इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट आंसर. यदि हमको x निकालना है, उसके बाद फिर से 3x करना है, फिर से 4,000 ऐड करना है, बहुत टाइम लगेगा. तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 6x था, 6x का वैल्यू इतना है, तो 3x निकालने के लिए 6x को 2 × 3x में कन्वर्ट कर दिया और इसी 2 को लेकर वहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो वह 3x का वैल्यू निकल आया 34,000 और न्यू सैलरी है 34,000 + 4,000 38,000. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 0.75:x प्रोपोर्शन टू 5:8, जो कि कॉन्सेप्ट से पूछा गया है. बहुत इजी है, मैंने आपको पहले से बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो उसी को ही डालना है वहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब 0.75 के साथ 8 मल्टीप्लाई 0.75 × 8 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 5 × x, दैट मीन्स 5x. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 को डिवाइड कर देना है, तो 5 को जब डिवाइड करेंगे उसको साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.15. 0.15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन देखो, सिर्फ हमको इसी 15 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, 120 बन जाएगा. और इसमें देखो राइट साइड में 5 और 1 दोनों नंबर छोड़कर पॉइंट है, तो वहाँ आंसर में हमको दोनों डिजिट छोड़कर पॉइंट देना है, दैट मीन्स 1.20 और 1.2. So our correct answer is option number B, 1.2.
So friends, the next question is, the sum of three numbers is 98. If the ratio of the first to the second is 2:3 and the second to the third is 5:8, then the second number is how much? So friends, you see here, हमको कैसे कन्वर्ट करना है मैं उसको आपको दिखाता हूँ। देखो, तीनों नंबर है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 2:3 है। उसका मतलब ए और बी और सी हमारा तीनों नंबर है। ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी और सी के रेशियो 5:8 है। तब हमको सेकेंड नंबर बी का वैल्यू पूछा गया है जब इन तीनों नंबर ए बी सी का सम 98 है। सो फ्रेंड्स, यू सी, जब हमको दोनों का रेशियो दिया गया है, इनमें दोनों का रेशियो दिया गया है, इनमें कॉमन बी है, तो हमको कैसे ए बी और सी तीनों में रेशियो लाना है, इस तीनों में रेशियो क्या है कैसे जानेंगे। देखो, शॉर्टकट ट्रिक, इजी ट्रिक में बता देता हूँ। ए और बी और सी के रेशियो हमको पाना है। ए और बी का रेशियो दिया गया है 2:3, बी और सी का रेशियो दिया गया है 5:8। यू सी हियर हाउ टू फाइंड आउट। लेकिन जब हमको इसको कन्वर्ट करना है बहुत इजी से, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देना सी के नीचे, जो इसका पास है वहाँ पे 5 है, उसके वहाँ पे 5 लिख देंगे तो वहाँ पे 5 लिख दिया, और सिंपली इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। ए बी और सी तीनों के रेशियो 10:15:24 आ जाएगा। वही है क्वेश्चन। तो ए बी सी का रेशियो पता है हमको, और तीनों का रेशियो मतलब ये 10 पार्ट है, ये 15 पार्ट है, 24 पार्ट है, और तीनों का सम 98 है। तो उसका मतलब 10, 15, 24 बी का शेयर, सेकेंड नंबर दैट मीन्स बी का शेयर पूछा गया है कि बी का 15 पार्ट है। किस में 15 पार्ट वो लेता है टोटल सम में, तो 5 और 9 49 से वो लेता है 15 पार्ट। लेकिन हमारा टोटल 49 से 15 पार्ट है, उसका मतलब 98 का टोटल पार्ट का 15/49 पार्ट हमको निकालना है। वही है आंसर। यदि बी ए का पूछा गया होता तो 10/49 × 98। सिमिलरली जब सी का पूछा गया होता तो 24/49 × 98। और जब उस तीनों का आंसर निकालेंगे तो तीनों पार्ट क्या है और उसको ऐड करेंगे तो वो 98 निकल आएगा। वही है रेशियो और प्रोपोर्शन का, और फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन है उसका ही एप्लीकेशंस होता है। तो देखो, हमको इसी का आंसर निकालना है। 49 1 जा 49 2 जा 98, और 15 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द सेकेंड प्रोपोर्शन इज 30। जब फर्स्ट पूछा जाएगा या थर्ड पूछा जाएगा तो उसमें 10/49, दैट मीन्स देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। 49 1 जा और 2 जा 10 2 जा 20, वहाँ पे 24 है। 24/49 × 98, 98 2 जा, यहाँ पे 24 2 जा 48। देखो, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे 30 20 48, वो तीनों मिलाकर बन जाएंगे 98, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया था। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98। सो फ्रेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ₹782 be divided into 3 parts proportional to 1/2:2:3:3/4, then the first part is, you see here this is in the ratio but this is in the fractional ratio. So you see, if you will solve, suppose you will do half x, 2/3x, 3/4x, this is right, but it will take some more times, or there may be some difficult to face in the solving. So how to convert fractional ratio to simple ratio? तो हमको कैसे कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है। तो इन तीनों में यदि हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, रेशियो वही रहेगा। तो वहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो जो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम पता है आपको 12 होगा, तो हम सब में 12 इंटू कर देना है। 12 जब 12 इंटू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो 2 6 हो गया, वहाँ पे 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 हो गया। तो इन तीनों में सिंपल रेशियो हम जो था फ्रैक्शनल रेशियो से हमने कन्वर्ट कर दिया हमारा 6:8:9 रेशियो को। तो वहाँ पे देखो वो टोटल कुल मिलाकर है 782,
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि 782 टोटल है, उसमें 6 पार्ट हमको कितना निकालना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 6/6 और 8 14 इन प्लस 9 दैट इज 23 इंटू 782। जब इससे डिवाइड करेंगे 23 1 23 3 जा 9 69, जब वहाँ पे जाएगा तो 89 92, उसमें 23 4 जा 92, तो वह निकल गया 34। सो 34 23 से 34 मल्टीप्लाई करें 782 आ गया। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 4 2 6 3 जा 18 2 20 दैट मीन्स 204। तो फर्स्ट पार्ट 204 निकल आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 204। So friend, the next question is question number 10. If 40% of a number is equal to 2/3 of another number, what is the ratio of the first number to the second number is? So you see 40% of a number, that means let two numbers are A and B. 40% of a number, that means 40% of A is equal to 2/3, that means 2/3 of B. So 40% means 40 by 100 into A is equal to 2/3 into B. So when we will cancel it, it will become 2/5, that means 2/5 of A is equal to 2/3 of B. So it is given that what will be the ratio of the first number to the second number. First number is A and second number is B, that means we have to find A by B. So here 2 and 2 will be cancelled, A by 5 is equal to B by 3, and when B will come to this side and 5 will come to that side, this 5 will come to this side and B will come to this side. So it will become 5/3, that means A is to B is equal to 5:3. So the correct answer option number C, the two numbers are in the ratio 5:3. Question number 11 is the fourth proportional to 5 8 15 is, that means there are two 15, then it is how much? Then we know that product of extremes is equal to product of means. So when we will multiply it, that means 8 into 15, 5x is equal to 8 into 15, that means x will become 8 into 15 by 5, 5 1 ja 5 3 ja, and 8 3 ja 24. So 24 is our correct answer, option number B, the fourth proportional is 24. So next question is, in a bag there are coins of 25 paisa, 10 paisa, 5 paisa in the ratio 1:2:3. If there is rupees 30 in all, how many 5 paisa coin are there? So you see total rupees is 30 rupees and 25 paisa, 10 paisa and 5 paisa are there in the ratio 1:2:3. So you have to find out the total money. So you see here, that means we have 30 100 rupees. So it is x, that means it's suppose this is x and here is it is 2x and it is 3x part. So 25 paisa into x, x number of 2x number of 3x number of, so it will become 25x plus here 2x will be multiplied with 10, that means its price will be 20x, then 3x with 5 plus 15x, it will total give 30 100 paisa. So you see, then if we will add, it will become 60x is equal to 300, that means x is equal to 300 divided by 60, that means 50. The value of x is 50, that means number of 25 paise 50, then this is 50 into 10 100, and this is 50 into 3 150 number of. So our correct answer is 5 paisa coins are there, 150 numbers, option number C. So friends, ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो आप ऐसे ही आपका प्रिपरेशन बनाए रखें और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी कुछ क्वेश्चंस है उसको हल कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग आता है। तो इसी वीडियो को देखो और उसको कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को बार बार देख के भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर, यदि आप इसी चैनल को पहले बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब न्यू वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।